فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے. اب اس نور سے جو وابستہ ہوگا وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا. عالم صاحب اس نور سے وابستہ ہوئے چمکتے ہوئے نظر آگے. عالم صاحب اس نور سے وابستہ ہوئے چمکتے ہوئے نظر آگے. اس لیے کہ اللہ نے ساری کائنات کو اگر بنایا ہے تو محبوب کی محبت میں بنایا ہے. محبوب کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا. حضور کی بات ہو رہی ہے، عشق کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کو اصلاح معاشرہ پہ اگر بات کی جائے گی تو آپ کو لمبی بات ہوگی، لیکن عشق کی بات ہو رہی ہے. اللہ کبیرہ آپ اندازہ کریں اس طریقے سے ہم عشق کرتے ہیں، کیسی محبت کرتے ہیں. ہم آقا سے کیسی محبت کرتے ہیں، آقا سے کیسی عشق کرتے ہیں. اللہ کبیرہ ابھی ایک عاشق تھا جو بریلی سے ٹوٹی ہوئی چڑھائی سے اعلان کرتا ہے کہ باہر کیا جوتوں کرم ہے شہر بتا تیرا، نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا. سربلا کیا جانے، سربلا کیا جانے، سربلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا. اولیاء مرتے ہیں آگے وہ تلوا تیرا. اور امام احمد رضا جب عشق کی چادر میں آپ جھومتے ہیں، عشق میں جب ڈوبتے ہیں، آقا علیہ السلام کے دیدار کے لیے آپ جب جا رہے ہیں اپنے والدہ گرامی کے ساتھ میں، اپنے والدہ کے ساتھ میں حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا جب اس جہاز کے پانی والے جہاز سے آج سے 100 سال پہلے یہ پانی والے جہاز سے لوگ جا رہے تھے. اعلیٰ حضرت جب اس وقت میرے آقا کے دربار میں جب جا رہے تھے، آقا علیہ السلام کے در پہ جب آپ حاضری دینے کے لیے جا رہے تھے اپنے والدہ کے ساتھ میں تھے، اور جاتے جاتے جب ناؤ یہاں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں کیوں نہ آقا کے بارگاہ میں جا رہا تو آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں، ریلیشن میں جاتے ہیں تحفہ لے کر جاتے ہیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں حضرت اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ آقا کے بارگاہ میں جا رہا ہوں خالی نہیں جاؤں گا. زبان کو ہلاتے ہیں، قلم کو نکالتے ہیں، ڈائری کو نکالتے ہیں، قلم سے کہتے ہیں ان کی مہاجر دل کے تجھے کھلا دیے ہیں، اصلاح کر دیے ہیں، مجھے بتا دیے ہیں جب آ گئی ہے جو سے رحمت پہ ان کی آنکھیں کرتے بٹھا دیے ہیں، کرتے ہنسا دیے ہیں. جب اعلیٰ حضرت پانی کے پیچھے پیچھے سمندر کی گہرائی تک جب آپ پہنچتے ہیں، جہاز میں رہنے والے جو پیٹر ہوتے ہیں آ کر کہتے ہیں سارے لوگ اللہ کے ذکر میں لگ جائے. اللہ کی ذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب کو سکون ملے گا. رب کو یاد کرنے سے اعلیٰ حضرت اس منزل پہ پہنچتے ہیں. یا رسول اللہ آنے دو، یا دوبا لو، اب تو تمہارے جانب کشتی تمہیں پچھوڑی ہے لنگر. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی ہے لنگر اٹھا دی گئی. لیکن ہم عشق تو کرتے ہیں، محبت تو کرتے ہیں، لیکن عشق کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ محبوب کیسے بنایا جائے گا، محبوب کیسے بنایا جائے گا تو حسن والا ہوگا. محبوب کیسے بنایا جائے گا تو پیار کرنے والا ہوگا. محبوب کیسے بنایا جائے گا تو ہم سے عشق کرنے والا ہوگا. محبوب ہمیں اسے بنایا جائے گا تو ہم سے محبت کرنے والا ہوگا. محبت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام ساری رات ہمارے لیے روتے رہے، اس امت کے لیے ساری رات آقا علیہ السلام روتے رہے. لیکن یہ امت آقا کو کیا دے رہی ہے؟ یہ امت صرف دنیا کے محبت میں کس طریقے سے گرفتار ہو چکا ہے. واٹس ایپ چلانے کے لیے وقت ہے، فیس بک چلانے کے لیے وقت ہے، انسٹاگرام میسنجر چلانے کے لیے وقت ہے. لیکن اگر کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے، کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے، وہ قرآن کو وقت نہیں ہے. یہ قرآن کیسے بچا ہے؟ اسلام کی آبرو کیسے بچی ہے؟ ایسی کی نہیں بچی ہے. ہمیں تو کیا معلوم ہے، ہمارے گھر کا کوئی بچہ تو شہید نہیں ہوا ہے نا، ہمارے گھر کا کوئی 18 سال کا نوجوان بچہ تو شہید نہیں ہوا ہے نا. اسلام کو بچانے کے لیے ہمارے گھر کے اندر کوئی 8 سال کا بچہ، کوئی 12 سال کا بچہ تو نہیں شہید ہوا ہے اس دین کو بچانے کے لیے. لیکن جس کے دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے سارے خاندان کو قربان کر دیا. اس نانا سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے نانا سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کرنے کا تقاضا کہ نہیں ہے. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ہر بات پر عمل کرتا ہے. آقا ارشاد بتا رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن نماز سے ہم دور ہیں. یہ محفل کیوں ہوتی ہے؟ یہ محفل ایسی ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس محفل سے انسان کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، اس لیے اس محفل کو کرایا جاتا ہے. اگر آپ اور محفل میں بیٹھے گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں بھی بیٹھے گے تو ضرور کچھ فائدہ ہوگا. نہ جانے کون سا انسان جانے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر 40 لوگ بیٹھتے ہیں، اس میں کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میری دعا قبول نہ ہو، اس کی دعا قبول ہو جائے. اسی لیے محفل سجایا جاتا ہے، اسی لیے میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ میلاد کیا ہے؟ میلاد کہتے ہیں حضور کی پیدائش کو میلاد کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کو علم مصطفیٰ نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حضور نے چاند کو جو پورا نہیں کیا ہے. ہم نے آپ کو بتا دوں صرف ایک آیت، صرف ایک اعلیٰ حضرت کا شعر، اور شعر جب ڈوب چکا
चुका था, सूरज डूब चुका था। आपको मालूम है आका ने चांद का इशारा कर दिया तो टुकड़ा हो गया, हाथ टुकड़ा वो जुड़ गया। लेकिन जो सूरज डूब चुका था, हाफिज मुजीबुर रहमान साहब, जो सूरज डूब चुका था, जो सूरज डूब चुका था, आका के दस्ते मुबारक का इशारा होता है, डूबा हुआ सूरज वापस आता है। मेरे ईमान कहते हैं, कुछ लोग तो ये कहते हैं हाफिज मुजीबुर रहमान साहब, जैसे मिसाल में दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मगरिब की तरफ, आप हमें मशरिक की तरफ से बुलाए, हजरत हाफिज जी अपने ज़हन में आप कहे कि हाफिज जी इधर आइए, मैं नहीं सुनूंगा तो नहीं वापस आऊंगा, मैं सुनूंगा तो वापस आऊंगा, नहीं सुनूंगा तो वापस नहीं आ सकता। इसलिए कि मेरा जो चेहरा है मगरिब की तरफ है, आप बुला रहे मशरिक की तरफ से, तो मैं कैसे सुनूंगा। कुछ लोग कहते हैं आका को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, उनके मुंह पे ये तमाचा मारना आला हजरत का वो शेर, इसलिए कि इंसान जो डूबा हुआ सूरज था, आका अलैहिस्सलात वस्सलाम अगर इशारा कर देते चांद घूम के भी आ जाता तो भी ये नजर था। लेकिन चांद ने जो सूरज डूब रहा था मगरिब की तरफ, आका ने मशरिक से इशारा करते हैं और डूबा हुआ सूरज वापस आता है। मेरे ईमान करते हैं सूरज उल्टे पाँव, बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह, सूरज उल्टे पाँव, यानी इसमें रुकना पड़ेगा। आला हजरत के तेवर को तो देखे, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारों से हो जाए अमान के नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, इसलिए कि सूरज उल्टे पाँव, यानी उल्टे पाँव वापस आ जा। अबे अंधे नशे तुझे नहीं मालूम कि आका के इशारे पर वो डूबा हुआ सूरज वापस आ सकता है। वो आका है जो मैदान महशर में भी काम देंगे, वो आका है जो दुनिया के अंदर भी काम देंगे, वो आका है जो कब्र के अंदर भी काम देंगे, वो आका है जो पुल सिरात पे भी काम देंगे, वो आका है जो हमारे मैदान महशर में शफाअत भी करेंगे। लेकिन हम तो आका से मोहब्बत करते हैं, आका से इश्क करते हैं, लेकिन चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती है। इंसान 10-20-25 ग्राम का उसको ताबीज दे दिया जाए, आधा किलो का दे दिया जाए तो भी वो पहन लेता है, लेकिन अगर उसको चंद ग्राम की दाढ़ी रखना उसे पसंद नहीं होता है। इसलिए कि लोग इन्हें कौन देखेगा। हम कहते हैं क्या हुस्न से ज्यादा कोई खूबसूरत, हुस्न से ज्यादा कोई खूबसूरत था। न जाने कितने सहाबा के सब दाढ़ी रख रहे थे। गौसे आजम को देख ले, वो भी दाढ़ी रखते थे, जुनैद बगदादी को देख ले, वो भी दाढ़ी रखते थे। गौसे आजम को देख, हजरत साबिर कलियर को देख ले, मखदूम सिन्ना को, वारिस रिबा को, साबिर मुजाहिद मिलत, हाफिज मिलत, बुरहान मिलत, आला हजरत सब के सब दाढ़ी रखते थे। कितने खूबसूरत थे। अब इतने खूबसूरत इंसान मैं आपको बता दूं, तुम कितने खूबसूरत हो, तुमको अपने पर होना ये यकीन आप जाने कि अल्लाह ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने इतना खूबसूरत पैदा किया है। अल्लाह चार कसम देता है, वत्तीन वज़ैतून वतूरी सिनीन हाकल बलदिल अमीन। और चौथी पांचवी आयत में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इंसान को, लक़द खलक़नल इंसान फी हस्न तक़वीम। अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात में से सबसे अफजल अगर किसी को बनाया तो हजरत इंसान। लेकिन इंसान अपने मकान को नहीं समझ पा रहा है, इंसान अपनी अजमत को नहीं समझ पा रहा है। इंसान है कि अब सोचता है कि ये सब कुछ होना है, ये सब कुछ नहीं होना है मेरे भाई। ये तो दुनिया में पानी है, इसको तो बड़ा होना ही होना है। यहाँ का 50,000 साल वहाँ के एक दिन बराबर होगा, ये सबको मालूम है। लेकिन इस दुनिया को पाने के लिए हम मेहनत भी करते हैं, मशक्कत भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तालीमात के लिए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए न जाने किससे कितनी झूठ बोलते हैं। फिर उसके बाद दुनिया आबाद होता है, लेकिन ये दुनिया आबाद सिर्फ 50-60 साल की जिंदगी के लिए हम मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। जैसे अगर आप किसी 75 साल के सही आदमी से आप पूछे कि चाचा आपकी जिंदगी कैसे गुजरी, वो कहेंगे परसों जवान हुआ था, परसों पैदा हुआ था, कल जवान हुआ था, और आज आ करके अपने एड़ी को मैं अपने खड़गी पे बैठ करके रगड़ रहा हूँ। अल्लाह क्या मौत दे देगा किसी को कुछ खबर नहीं है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा देखना है, हर जानदार चीज को मौत का मजा देखना है। तो मौत से कोई इंसान बच नहीं सकता है। मौत एक ऐसी चीज है जो आना ही आना है, लेकिन वो मैदान में हशर होगा जब अगर दुनिया के अंदर हम पाप करेंगे, दुनिया के अंदर बदगुमानी करेंगे, दुनिया के अंदर चोरी करेंगे, दुनिया के अंदर गाड़ियां देंगे, दुनिया के अंदर किसी का जमीन हड़प देंगे, दुनिया के अंदर किसी ईमान को गाली देंगे, वो मैदान महशर होगा, जहन्नम होगा या तो जन्नत होगा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नमी को जहन्नम में डालेगा, जहाँ पर मौत को भी सवा कर दिया जाएगा, उस वक्त हमारा क्या बनेगा। तुम क्यों परेशान होते हो, क्यों टेंशन लेते हो,
जाती है, ये कुछ भी नहीं है। आपको मालूम है इससे पहले बहुत बड़े बड़े थे, सब आए सब चले गए। इशार करने बात कर रहा हूँ, कोई नहीं आया है जो इस दुनिया के अंदर आएगा और रहेगा। अब देखिए किस तरीके से माहौल बन रहा है हिंदुस्तान का, हर तरफ देख रहे लोग, लेकिन हम अपने जिंदगी को किस तरीके से गुजार रहे हैं हमें नहीं मालूम है। अल्लामा काफी मुरादाबादी कहते हैं कोई कुल बाकी रहेगा ना जान रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का हसन तुम्हें यकीन नहीं होता है आखिरी वक्त तक ये इस्लाम काबू रहेगा। अब देखे एक सिर्फ मैं आपको नाम में बात बता रहा हूँ, मैदान करबला देखे, और मैदान करबला में यजीद 22,000 थे और इधर सिर्फ 72 थे। यजीद 8 बेटे को छोड़ के गया था और हुसैन सिर्फ एक बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ करके कहते। और फिर उसके बाद आप देखे जो 8 थे उसके दुनिया के अंदर कोई औलाद नजर नहीं आती है, लेकिन जो एक छोड़ कर गए थे हर जगह आपको औलाद नजर आएगी। और से आजम इमाम हुसैन की औलाद है, गरीब नवाज इमाम हुसैन की औलाद है। ये सब जो है हसनी और हुसैनी के वजह से ये तो बहुत देते हैं बच्चे, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती है। बकरियां 1, 2, 3 देती है, हजारों के तादाद में, करोड़ों के तादाद में कुर्बानियां होती है, ऐसे ही लोग काट के खा जाते हैं। लेकिन वजह ये है जो हलाल होता है उसमें अल्लाह बरकत देता है, और जो हराम होता है अल्लाह उसमें बरकत देता ही नहीं। यानी बकरी हलाल है, हलाल में बरकत है। अल्लाह ने किस तरीके से ये निजाम बनाया है, दुनिया के निजाम अल्लाह ने बनाया है कि ये दुनिया सिर्फ चंद की दुनिया है। लेकिन मैं आपको एक बात 2 बात और बोलूंगा, इसलिए कि इश्क की बात हो रही थी, आका के चेहरे की बात, आका के सूरत की, आका के सीरत की, इतनी बातें मैं बता दिया। अगर चंद बातें अगर आपके ज़हन में रहेगा इंशाअल्लाह अगर इस पर अमल करेंगे दुनिया और आखिरत दोनों को बनती हुई नजर आएगी। आए इश्क की बात करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की बात करते हैं, वो कैसा हुस्न वाला होगा जब अल्लाह ने बनाया होगा, अपने नूर से बनाया होगा, वो कैसा नूर होगा। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने इरशाद, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अब नूर किसे कहते हैं? नूर उसे कहते हैं जो खुद रोशन होता है और दूसरों को भी रोशन करता है। इश्क की बात हो रही है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर है, इस नूर से जो वाबस्ता हुआ अल्लाह ने सभी को बनाया। इस उसी नूर से, इस नूर से, मेरे नबी के नूर से आसमान का सामियाना लगा था, मेरे नबी के नूर से चांद की चांदनी पैदा की, मेरे नबी के नूर से सूरज की किरणें पैदा की, मेरे नबी के नूर से सितारों की अंजुमन पैदा की, मेरे नबी के नूर से, इस नूर से, उसी नूर से अब करीब आ गए। आपको बात समझ में आएगी, हजरत आदम इस नूर से करीब हुए तो चमकते हुए नजर आ गए। हजरत आदम उसी से चमके, हजरत शेर उसी से चमके, हजरत यहया उसी से चमके, हजरत जकरिया उसी से चमके, हजरत दाऊद उसी से चमके, करीब आ गए। मैं आपको छठी नबी बता रहा हूँ, जब इस नूर से जब वाबस्ता होते हैं सब चमकते हुए नजर आते हैं। सिद्दीक़ अकबर उसी से चमके, फारूक आज़म उसी से चमके, जुनैद बगदादी उसी से चमके, जाफर सादिक उसी से चमके, मसूद हाजी उसी से चमके, हिंद के बारगाह में आके मैं आपको बता दूं मोइनुद्दीन उसी से चमके, शहाबुद्दीन उसी से चमके। ये जितने महफिल में बैठे हैं सब मेरे नबी के नूर से चमके हैं, मेरे इमाम कहते हैं जना से पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। कैसा इश्क होगा, कैसा चेहरा होगा, इसके बारे में कैसा हुस्न होगा, कैसा पैर होगा, कैसा हाथ होगा, कैसी आंखें होगी, कैसी सुल्फे होगी, कैसा चेहरा होगा, इसके बारे में अल्लाह के रसूल इरशाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है। इनकी रफ्तार हुजूर की बात कर रहा हूं, इनकी रफ्तार सुब्हानल्लज़ी असरा हो, इनकी आंखें मा ज़ागल बसर व मा तगा हो, इनका दस्ते मुबारक व मा रमीत वलाकिन लगा नमा हो, इनका वजूद लाउ कसम बिहादल बलद हो, इनका चेहरा बदुहा हो, इनके सुर पर लैल हो, अल्लाह अकबर कबीरा, इनका चौड़ा चौड़ा सीना अलम नशर लगे सदरक हो, अल्लाह अकबर कबीरा, इनकी रहमत इन्ना रहमतुल्लाहि करीब मिनल मुहसिनीन हो, इनके इताअत अमयो तो रसूल फकरता अल्लाह हो, अल्लाह अकबर कबीरा, इनका जिक्र बरफाना लगा जिक्र हो। वो मेरा नबी है, वो कैसा नबी है, वो नबियों का नबी है, इसलिए कि वो सारे नबी का भी नबी है, जमात का भी नबी है, नबातात का भी नबी है, लेकिन वो नबी है इसके लिए हुस्न होता है। हुस्न उसे कहते हैं इसके
अंदर कोई ऐब न हो। लेकिन हमने देखा चांद की चांदनी खूबसूरत है, लेकिन उसके अंदर गड्ढे नजर आते हैं। हम दिल दे दूं दे कैसे, हम उससे इश्क करें तो करें कैसे। हमें इश्क करनी है मुस्तफा जाने रहमत से, हमें मोहब्बत करनी है मुस्तफा जाने रहमत से। इसलिए कि जो इश्क होता है, जो मोहब्बत होती है, जब इंसान मोहब्बत में डूब जाता है उसे कुछ भी नहीं समझ में आता है, फिर तो महबूब की बातें उसे समझ में आती है। हमें इश्क तो हुआ नहीं है, हमें आका से मोहब्बत तो हुई नहीं है। आका से मोहब्बत हो जाती, आका की आंखों में ठंडी नमाज है तो नमाज को तर्क नहीं करते। जब नमाज पढ़ेंगे तो नमाज का अहकाम जानेंगे, नमाज के फराइज़ व वाजिबात सुन्नतों मुस्तहब जानेंगे, हुस्न के फराइज़ व वाजिबात जानेंगे। एक बात मैं बता देता हूँ, हुस्न की बात मैं कर रहा हूँ इसलिए कि इस दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर थे। अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को नहीं आता है। मैं एक बात बता देता हूँ, उसके बाद डॉक्टर माइकल हार्ट का मैं वो बात बताता हूँ जिसके लिए इंसान को जो नहाने का तरीका है, हुस्न का तरीका है, ताकत का तरीका है। कुछ बातें हो जाए जो कीम की बातें हो जाए, कुछ बातें हो जाए जो अच्छी बातें हो जाए, लेकिन इस बात को होने के बाद इसलिए कि अगर फूल देखेंगे फूल भी खूबसूरत है, लेकिन अगर उसको तोड़ेंगे तो आपको कांटे चुभ जाएंगे। और अगर सूरज को दिल लेते हैं तो अपनी किरणों से तुम्हें झुलसा करके मार देगा। मैंने देखा कि समंदर ताकतवर है, समंदर बहुत खूबसूरत है, इसको दिल के दो दे कैसे, बाहर को कैसे दिल दे। अभी तो लहराती हुई है, अभी तो उड़ती हुई है, लेकिन दिल नहीं देते हैं उसको। इसलिए कि जो महबूब होगा तो तकलीफ नहीं देगा। इसलिए कि हम उससे मोहब्बत करते हो, हमसे मोहब्बत न करें, ये भी वफादारी नहीं होती है, ये भी सखा नहीं होती है, ये भी सदाकत नहीं होती है। हम उससे मोहब्बत करते हैं तो वो भी हमसे मोहब्बत करे। लेकिन आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, इसके हुस्न के बारे में मेरे इमाम कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है। बोले चाचा चाचा लो चाचा बोले सुभान अल्लाह, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहान की ये फूल खार से दूर है, ये शम्मा है कि दुआ नहीं। वो कहता नबी है जिसके बारे में जब सिद्दीक़ अकबर ने देखा हाफिज मुजीबुर रहमान साहब मेरे नबी के नूर को, मेरे नबी के चेहरे को, मेरे नबी के वजूद को, मेरे नबी के जुल्फ को, मेरे नबी के चेहरे को जब किसी नबी जब किसी सहाबी ने देखा, यानी सिद्दीक़ अकबर ने देखा, पहले सहाबी पहले ईमान लाने वाले मेरे आका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, औरतों में हज़रत खदीजा कुबरा है, गुलामों में हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा है, बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ये सब वो है जो आका पर पहले ईमान ला रहे हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ से मैं आपको बात बता रहा हूँ, सीरत क्या होती है, सूरत क्या होती है। देखिए यहाँ से सुनिए आप, सिद्दीक़ अकबर ने मेरे आका को देखा तो फरमाया आका आपसे ज़्यादा कोई हसीन और जमील नहीं है। मिसाल के तौर पे इस महफिल के अंदर कोई खूबसूरत इंसान हो जिसके अंदर हुस्न हो, जिसके अंदर तवानाई हो, जिसके अंदर ताकत हो, जिसके अंदर कुव्वत हो, तो उससे कहा जाएगा इस महफिल के अंदर इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, ताकतवर नहीं है, ताकतवर नहीं है, सखा नहीं है, खर्च करने वाला नहीं है, इबादत करने वाला नहीं है। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं आका आपसे ज़्यादा कोई हसीन और जमील नहीं है। आप इज्जत कर रहे हैं आका आपसे ज़्यादा कोई हसीन और जमील नहीं है। हज़रत उस्मान गनी, मौला अली, हज़रत खदीजतुल कुबरा, हज़रत आयशा, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अबू सैद सब कह रहे हैं आका आपसे ज़्यादा कोई हसीन और जमील नहीं है। लेकिन एतराज़ करने वाला एतराज़ कर रहा है, हो सकता है पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत हो, इंग्लिस्तान से ज्यादा कोई खूबसूरत हो, हालैंड में, अफ्रीका में, अमेरिका में, जापान में, मिस्र में, कतर में, हो सकता है कहीं ना कहीं आका से ज्यादा कोई खूबसूरत हो। लेकिन मैं आपको उसके बारे में लेकर चल रहा हूँ जिसको ज़माना जिब्रील अमीन जानती है, जिब्रील अमीन के नाम से जानती है। और जिब्रील अमीन इसने आदम को देखा है, आदम की आदमियत को देखा है, मूसा को देखा है, मूसा के जमाल को देखा है, ईसा को देखा है, ईसा की सच्चाई को देखा है, इब्राहिम को देखा है, इब्राहिम के खुल्लत को देखा है, सिद्दीक़ को देखा है, सिद्दीक़ के सदाकत को देखा है, फारूक को देखा है, फारूक के अदालत को देखा है, उस्मान को देखा है, उस्मान की सजावत को देखा है, अली को देखा है, अली की शुजाअत को देखा है, इमाम हुसैन को देखा है, इमाम हुसैन की शहादत को देखा है। लेकिन आका आपसे ज्यादा किसी को हसीन और जमील न भाजा, हमने ज़मीन को उलट उलट के देखा। अब कोई ये कहेगा आका से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, ये अकीदा बरेली के ईमान का है तो नहीं माना जाएगा। ये अकीदा बरेली के ईमान का नहीं बल्कि सिगरा पिलाने वाले हज़रत जिब्रील अमीन का है कि यही बोले सिगरा बोले जब ने जाग डाले तभी मैंने जान डालते हुए या रसूलुल्लाह सभी मैंने जान डाला तेरे पाए पाया
تجھے یقین یہ بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا 40 منٹ گفتگو ہو گئی دیکھ لیں آپ 40 منٹ ہو گئے اور تقریب بولنی ہے اس وجہ سے یہ بات ختم کرتا ہوں ٹھیک استغفر اللہ ربی من کل ذنب و بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ